Assalamu alaikum, students. Welcome to the new class. This is lecture number 9. Today we will discuss the physical layer part 3. In this lecture, I will discuss transmission impairment. Okay. Now, in this transmission impairment, you will see that we have some causes of impairment. Okay. Signal travel through transmission media which are not perfect. ओके देखिए जब भी कोई सिग्नल जो है वो किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम में ट्रेवल करता है लाइक इट कैन बी वायर, इट कैन बी एयर, okay, it can be optical fiber cable, so we can say it's a light. okay, so इन तीनों फॉर्मेट्स में अगर किसी भी मीडियम के अंदर कोई सिग्नल ट्रेवल करेगा तो इसके अंदर परफेक्शन नहीं होती. The reason is that the signal at the beginning of the medium is not the same as the signal at the end of the medium. देखिए जब आप ट्रांसमिशन करते हैं तो स्टार्ट में जो सिग्नल की स्ट्रेंथ होती है और रिसीविंग साइड पे जो स्ट्रेंथ होती है उसमें अक्सर चेंज आ जाता है. ओके, सो वी कैन से दैट व्हाट इज सेंट इज नॉट व्हाट इज रिसीव्ड. ओके, सो in this case we have three causes of this impairment. Okay, and these are attenuation, distortion and noise. Okay, here you can see these are the three transmission impairment. Okay, types. The first was an attenuation. So attenuation means a loss of energy when a signal or a signal जो है, as you know we have simple signal and composite. Composite is a combination of two or more signals. So when this signal travels through the medium, it loses some of its energy in overcoming the resistance of the medium. देखिए मीडियम में चूंकि रेजिस्टेंस होती है किसी भी सिग्नल के लिए तो उस रेजिस्टेंस की वजह से जो है उस सिग्नल का स्ट्रेंथ कम हो जाता है. दैट इज व्हाई अ वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल गेट्स वार्म. मतलब वो जो वायर है वो गर्म हो जाता है. ओके, इट्स बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ दैट मीडियम टू द सिग्नल. After a while, some of the electrical energy in the signal is converted to heat. To compensate for this loss, amplifiers are used to amplify the signal. तो अक्सर हम देखते हैं कि एम्पलीफायर होता है वो किसी भी सिग्नल के वीकनेस को दोबारा से रिजनरेट करता है, उसको ओवरकम करता है. So this is called attenuation. Okay, so here you can see the example. This is the original signal, okay, which is sent from the source, from the sender. ये हमारे पास है ट्रांसमिशन मीडियम. So in this point 1 we have this sort of original signal. When it travels through this medium, point 2 पे हमारे पास सिग्नल का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो पीक बहुत ज़्यादा ऊंचा है लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा सा कम हुआ है. द रीजन इज दैट कि सिग्नल हमारे पास वीक हुआ है. सो ये फिर यहाँ इसे कहते हैं एटेन्यूएशन. Here the signal is attenuated. Here you can see. So when we place here amplifier, the signal is again amplified and it is again the same as it was sent. Okay, but the main point in this slide is this attenuation or the low energy of the signal. Okay, and there is the reason is the transmission medium resistance. This was the first type. So how can we measure this attenuation? To show that a signal has lost or gained strength, engineers use a unit of the decibel. ये जिस तरह हम कहते हैं कि फला चीज़ का जो यूनिट है, लाइक हम देखते हैं डिस्टेंस का हमारे पास मीटर है. ओके, इसी तरह हमारे पास जो अटेन्यूएशन के लिए जो यूनिट है वो है डेसिबल. सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डी small d and capital B, dB. Decibel or dB measure the relative strength of the two signals or one signal at two different points. यानी हमारे पास एक सिग्नल है तो हम दो पॉइंट्स पे जब इसको मेजर करते हैं कि वो शुरू में कैसा था और वो आखिर में किस तरह है, तो इन दो पॉइंट्स पे जज करने के लिए हम इसको जब मेजर करते हैं तो इट इज़ इन डेसिबल्स. नोट दैट डेसिबल इज नेगेटिव इफ द सिग्नल इज एटेन्यूएटेड. अगर उस सिग्नल में एटेन्यूएशन आई है, उसकी स्ट्रेंथ कम हुई है, तो हम कहते हैं कि ये इसका जो डेसिबल है वो नेगेटिव में है. एंड पॉजिटिव कब होगा? इफ द सिग्नल इज एम्पलीफाइड, ओके, और रीजनरेटेड.
So variables P1 and P2 are the powers of a signal at point 1 and point 2. ठीक है, यानी point 1 जो है उस पे हमारे पास जो सिग्नल है उसको कहते हैं, इसका पावर है P1, और point 2 पे ये जो हमारे पास पावर है वो है P2। तो इसका जो फार्मूला है वो इस तरह होगा, टू फाइंड डेसिबल 10 log of 10 power of point 2 divided by power 8 point number 1, यानी पावर 8.2 अगर हम डिवाइड करेंगे पावर 8.1 से और इसका हम 10 log 10 लेंगे तो वी विल गेट द डेसिबल। ओके, एग्जांपल को अगर आप देखें, सपोज अ सिग्नल ट्रेवल्स थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम एंड इट्स पावर इज रिड्यूस्ड टू 1/2, यानी आधा उसका पावर जो है ना वो कम हुआ। तो दिस मींस दैट P2 इज इक्वल टू P1। इन दिस केस अटेन्यूएशन जो है वो किस तरह होगी, उसका फार्मूला जो आपने अभी पढ़ा है वो इस तरह है कि 10 log of 10 पावर 8, अच्छा यहाँ पे अगर मैं प्लेस करूँ 0.05, बिकॉज इस दिस मीन दैट पावर P2 जो है वो हाफ है P1 का। सो ये जो हमारे पास है P2 डिवाइडेड बाई P1, तो P2 हमारे पास कितना है 0.5 है और P1 एज इट इज है। तो P1 और P1 हम क्रॉस कर देंगे, वी विल गेट 0.5, उसका 10 log of 10 लेंगे तो देन एट द एंड वी विल गेट -3 decibel. Okay, this is the, it means it is negative. So negative means that the signal is attenuated, it has lost some of its energy. Okay, so this is the answer. Sorry, okay, this is डेसिबल हमारे पास हो गया, इसका फार्मूले से एग्जांपल भी हो गया। अब आते हैं सेकंड impairment पे, दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मींस दैट द सिग्नल चेंजेस इट्स फॉर्म और शेप, यानी डिस्टॉर्शन में ये होगा कि जो सिग्नल है उसका शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, distortion can occur in a composite signal made of different frequencies. Each signal component has its own propagation speed. देखिए हमने ये कहा है कि composite signal is a combination of multiple simple signals. So जब भी हमारे पास जो है ये जो composite signal है, its components यानी इसके जो simple parts हैं, simple signals हैं, has its own propagation speed. प्रोपेगेशन स्पीड मींस व्हेन इट ट्रेवल्स थ्रू सम मीडियम, सो इसकी अपनी स्पीड होती है। मतलब ये है कि बास सिग्नल जो है वो वायर के अंदर ट्रेवल करेंगे, जिस तरह कुछ सिग्नल इस तरह होते हैं कि वो एयर के अंदर ट्रेवल करती हैं, कुछ सिग्नल इस तरह है कि हमारे पास वो ऑप्टिकल फाइबर यानी लाइट के फॉर्म में अच्छी तरह ट्रेवल करती हैं। तो हर सिग्नल का अपने लिए एक आइडियल मीडियम को चूज मतलब उसके लिए होती है, तो इसे कहते हैं प्रोपेगेशन स्पीड व्हेन इट ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम, therefore its own delay in arriving at the final destination। तो जब मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है तो जाहिर ही बात है इसका जो डिले होगा वो भी होगा, क्योंकि मीडियम है तो डिले भी होगा फाइनल तक पहुंचने में, आखिर रिसीवर तक पहुंचने में। तो इसे कहते हैं प्रोपेगेशन स्पीड। In other words, signal components at the receiver have phases different from what they had at the sender। सेंडर और रिसीवर में जो डिफरेंस है वो है फेजेस का, भी हो सकता है। फेज मीन द एंगल ऑफ द सिग्नल। ओके, द शेप ऑफ द कंप्यूटर सिग्नल इज देयरफॉर नॉट द सेम। ठीक है, यानी जब आपके पास फेज चेंज हो जाएगा सिग्नल का तो उसका शेप भी सेम नहीं रहता। लाइक इन द एग्जांपल वी कैन सी दिस इज द कंपोजिट सिग्नल, ये हमारे पास है कंपोजिट सिग्नल, इसके पार्ट्स हमारे पास ये तीन है। ये जो आप देख रहे हैं ना इसका जो पीक यहाँ पे, तो ये पीक इसकी वजह से है। ओके, एंड this is the second and the third one is this small this is you can say it's a higher frequency। तो ये जो हायर फ्रीक्वेंसी है वो इसकी वजह से आई है। सो दिस इज द कंपोजिट सिग्नल और इसके ये तीन पार्ट्स हैं। ओके, इसके कंपोनेंट्स हैं। तो जब यहाँ से सेंटर पे होते हैं तो इस तरह होते हैं, लेकिन जब वो रिसीवर की तरफ आ जाते हैं तो अब यहाँ पे आप कैन यू फाइंड द डिफरेंस इन दीज थ्री एंड द डिफरेंस इन दीज थ्री, यस देयर इज अ डिफरेंस। ये तो तकरीबन अगर आप देखें सेम ही है, लेकिन सेकंड को अगर आप देखें ये स्टार्ट हुआ है इसी एंगल पे, इन आप इस पॉइंट को देखें और ये स्टार्ट हुआ है बिल्कुल यहाँ पे ऊपर से, इसका इसे कहते हैं चेंज इन फेज। इसका फेज यहाँ से स्टार्ट है और इसका फेज यहाँ से स्टार्ट हुआ, इट मीन्स कि चेंज आया है। यहाँ पे देखें इसका फेज यहाँ देखें ऊपर से है और इसका फेज यहाँ नीचे से स्टार्ट हुआ है।
सो इट मीन इसका भी फेज चेंज हुआ है। ओके, सो अब जब इन दो कंपोनेंट्स में चेंज आया हुआ है तो इसकी वजह से जो रिसीवर पे सिग्नल है वो कुछ यूं हुआ है, थोड़ा सा देखिए इसका शक्ल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है एज कम्पेयर टू द सेंडर। सो सेंडर पे सिग्नल ये था और रिसीवर पे हमारे पास सिग्नल ये है। इट मींस दिस इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द शेप एंड द फेज। ओके, इसे कहते हैं डिस्टॉर्शन। तो ये भी हमारे पास एक ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट है। ओके, द थर्ड टाइप इज नॉइज। व्हाट इज नॉइज? नॉइज इज अनदर कॉज ऑफ इम्पेयरमेंट। सेवरल टाइप्स ऑफ नॉइज हमारे पास हो सकती हैं, लाइक thermal noise है, induced noise, crosstalk and impulse noise. Now what are these four types? Let me explain these. Thermal noise is the random motion of electrons in a wire which creates an extra signal not originally sent by the transmitter. आपने सिग्नल सेंड किया लेकिन बीच में इस तरह हुआ कि जो रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वजह से जो है वो सिग्नल थोड़ा सा चेंज हुआ, रिसीवर पे वो चेंज हुआ, तो ये भी एक किस्म की नॉइज है। इंड्यूस्ड नॉइज हमारे पास क्या है? इंड्यूस्ड नॉइज मींस इट कम फ्रॉम द सोर्स सच एज मोटर्स एंड अप्लायंसेस। ये इस तरह होता है कि अगर आपके घर में सपोज अप्लायंसेस हैं, फ्रिज है, टीवी है या कोई मोटर वगैरह है, तो उसकी वजह से जो है ना आपके सेंडर सिग्नल पे थोड़ा सा नॉइज वो कैच कर लेता है। दीज डिवाइसेस एक्ट एज अ सेंडिंग एंटीना। इसकी मिसाल इस तरह है कि आपके पास एक एंटीना है और आपको वो सिग्नल सेंड कर रहा होता है और आप उसको कैच कर रहे होते हैं। तो जो आपका ओरिजिनल सेंडर सिग्नल है वो इन अप्लायंसेस से सिग्नल को नॉइज को कैच करता है और उसकी जो 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 शेप है या जो सिग्नल है ओरिजिनल वो थोड़ा सा उसकी वो चेंज हो जाता है रिसीविंग साइड पे। तो ये भी हमारे पास एक टाइप है नॉइज का। क्रॉस टॉक इज द इफेक्ट ऑफ वन वायर ऑन अनदर। अक्सर हमारे पास अगर दो वायर्स बहुत करीब करीब हैं तो एक वायर का दूसरे के साथ जो है ना वो नॉइज या क्रॉस टॉक आ सकता है और उससे भी जो है ना वो ओरिजिनल सिग्नल पे जो है ना वो इफेक्ट आ सकता है। इम्पल्स नॉइज हमारे पास क्या है? इट्स स्पाइक। स्पाइक मीन्स यानी उतार चढ़ाव हमारे पास आ सकता है। ए सिग्नल विद हाई एनर्जी इज वेरी इन शॉर्ट टाइम दैट कम्स फ्रॉम द पावर लाइंस लाइटिंग एंड यानी सपोज लाइटनिंग हो गई, बिजली जो है ना वो कड़कती है, अक्सर बादल वगैरह जो है ना गरजते हैं, तो अक्सर अचानक जो है वो आपका जो पीक सिग्नल है वो अचानक से ऊपर हो जाता है। इट इज़ अ वेरी हाई एनर्जी एंड वेरी शॉर्ट टाइम, इसे कहते हैं स्पाइक। इस तरह आप शूज़ पहनते हैं ना फुटबॉल के तो उसके ऊपर वो स्पाइक्स होते हैं ना शॉर्ट शॉर्ट से, तो इस तरह का सिग्नल के ऊपर जो है ना अचानक सा ये इसकी हाई एनर्जी आ सकती है, इसे कहते हैं इम्पल्स नॉइज। तो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ नॉइज सेंडर सिग्नल कैन कैच। यहाँ पे अगर आप देखें नॉइज का, ये हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल है ट्रांसमिशन साइड पे, दिस इज ऑन पॉइंट वन। जब ये सेंड हुई तो बीच में क्या हुआ कि अचानक से एक स्पाइक यहाँ पे आ गया, तो ये एक्स्ट्रा नॉइज है। इस नॉइज के आने के बाद जो पॉइंट टू पे रिसीवर है वो भी देखें यहाँ पे चला गया है। ओरिजिनल हमारे पास ये था और इसका रिसीविंग ये है। तो ये हमारे पास इसका नुकसान ये है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो यहाँ पे चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ द चेंज इन शेप ऑफ द सिग्नल। तो ये हमारे पास नॉइज की एक एग्जांपल है। अच्छा, नॉइज को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो नॉइज को मेजर करते हैं यूजिंग एस एन आर। एस एन आर मीन्स सिग्नल टू नॉइज रेशो, यानी इस सिग्नल ने कितना नॉइज जो है ना वो पकड़ा हुआ है। ठीक है, एस एन आर इज एक्चुअली द रेशो ऑफ व्हाट इज वांटेड सिग्नल टू व्हाट इज नॉट वांटेड, यानी जो सिग्नल हमने सेंड किया हुआ है तो उसके साथ कितने अनवांटेड नॉइज जो है ना वो शामिल हुआ, ऐसे कहते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशो। हाई एस एन आर मीन सिग्नल इज लेस करप्टेड। अगर एस एन आर की वैल्यू हमारे पास हाई है वैल्यू, तो इट मीन्स कि सिग्नल में करप्शन बहुत कम है। अगर एस एन आर की वैल्यू हमारे पास कम है, इस मीन्स द सिग्नल इज मोर करप्टेड। फार्मूले यहाँ पे देखें, एस एन आर इज इक्वल टू एवरेज सिग्नल पावर हमारे पास कितना है और हमारे पास एवरेज नॉइज कितना है। अगर आपके पास ये दो चीज़ें हैं then you can find the SNR because SNR is the ratio of two powers, एक पावर हमारे पास ये है और एक पावर हमारे पास ये है। इसको भी हम मेजर करते हैं डेसिबल यूनिट्स में। SNR dB आपको आप ये इसको कहेंगे SNR dB in decibels। ओके, फार्मूला इसका ये है SNR डेसिबल इज इक्वल टू 10 into SNR। फिर पहले आप क्या करेंगे, यू विल फाइंड द SNR एंड देन आप इसको ये फार्मूले में पुट करेंगे, पुट करने के बाद यू विल गेट SNR इन डेसिबल्स। एग्जाम्पल देखें,
The power of a signal is 10 well is milliwatt हमारे पास सिग्नल की पावर थी. एंड द पावर ऑफ द नाइज इज 1 माइक्रोवाट. यानी जो हमारे पास नाइज है वो है 1 माइक्रोवाट और हमारे पास जो सिग्नल की पावर है वो है इन मिलीवाट. सो व्हाट आर द वैल्यू ऑफ एस एन आर एंड एस एन आर डी बी. इसको हम दोनों को फाइंड करेंगे. आपके पास फार्मूलाज गिवन है. क्या करेंगे? द वैल्यू ऑफ एस एन आर एंड एस एन आर डी बी कैन बी well found by these two formulas. SNR is equal to 10,000 माइक्रोवाट. ओके यानी हमने इस 10 मिलीवाट को कन्वर्ट किया है माइक्रोवाट में. तो माइक्रोवाट हमारे पास ये बनता है डिवाइडेड बाय नाइज. दिस इज द एवरेज पावर एंड दिस इज द नाइज पावर. तो नाइज हमारे पास ऑलरेडी है 1 माइक्रोवाट. यानी फार्मूला हमारे पास बिल्कुल ये पिछला वाला ये फार्मूला है. ठीक है, ये सिग्नल पावर डिवाइड बाय नाइज पावर. तो हमारे पास ये आ गया सिग्नल पावर डिवाइड बाय नाइस पावर. तो इससे आ गया 10,000. अब 10,000 हमारे पास एस एन आर तो हमारे पास आ गया. अब एस एन आर को हम जो है ना फीड करेंगे यहाँ पे 10,000 10 log of 10 then you will get SNR in decibels. So after that we get 40. So 40 is the SNR in decibels. Okay. So students, this was the end of this lecture. Hope you will you have find it very fruitful. बुक को अपने फॉलो करना है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.